Welcome to our next video of StorePay, which is all about the checkout process. If customer will going to scan your website, अगर आपका कस्टमर स्कैन करता है QR को वेबसाइट ओपन करने के लिए, जैसे ही स्कैन करेगा वेबसाइट ओपन होगी एंड अगर मुझे सपोज कुछ खरीदना है, आई जस्ट वांटेड टू परचेज अ पिज्ज़ा एंड वन बर्गर। एक तो बाय नाउ, डायरेक्टली बाय नाउ का ऑप्शन है, बाय नाउ भी कर सकता है। और अगर मुझे दोनों चीज़ें खरीदनी है, फॉर दैट आई हैव टू ऐड टू कार्ट पिज्ज़ा, add to cart burger, and here we can see there's two option will be showcasing. The burger will cost me 50 rupees and the pizza will cost me 350 rupees. Okay, so now I'm going to click this checkout, and here it shows continue as guest or create an account. So rather I can create an account. For that I have to click the create account option, and I need to fill the details. Above than that, if I will going to choose continue as guest option, then directly I can purchase from checkout page. So in this checkout page, we can see that there is a delivery option, pickup option, and dining table option. In the delivery option, if because I am in my home and I need my order in my home, or rather I just wanted to come in restaurant, and I need to book my table, so I can rather book my table, or rather I can have my order in my home, or also I can go for pickup option. Suppose I'm looking for any cake, and I need that birthday cake on a particular date or time, so I need to choose the pickup option, that I will going to come in your restaurant, in your cafe, anything whatever you are dealing with. I just wanted to come and will going to pick my product from you and return back. So this is three options of delivery. Okay, so first thing delivery, second pickup, third dining. If I will going to choose delivery, then here you can see it shows delivery date. I can choose delivery date. I can choose delivery time on according to delivery date. And if I will going to choose pickup option, then again the pickup date and pickup timing. If I will going to choose dining table means table booking option, and if you have any hotels, for that there's a room option also available, so I can choose room as well. Okay, I can choose room and I can choose table options as well. So as if you, because it's a restaurant platform, so in the restaurant definitely there will be the table option, so I will going to choose the table option, table number 1. I need to choose my like my table number where I will going to sit. So this is a dining tables. Three option I've explained to you. Next coming, if I'm clicking delivery, you can see here in delivery information will be asking checkout, in the checkout process timing. जब भी हम चेकआउट करते हैं, तो चेकआउट करते समय जब भी आप डिलीवरी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे डिलीवरी इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा, जिसमें आप सेलेक्टेड एरिया, मतलब अगर आप लोग जो भी सिलेक्टेड एरिया में डिलीवरी करते हो XYZ, जो भी सिलेक्टेड एरिया आपको लगता है कि मैं 5 किलोमीटर्स तक के रेंज के अंदर डिलीवरी करता हूँ, तो आप कोई भी एक मेन सेलेक्टेड एरियाज यहाँ पे डाल सकते हैं। कस्टमर उन्हीं मेन सेलेक्टेड एरियाज में क्लिक करेगा। जैसे अगर मैं वसंत विहार से हूँ, तो वसंत विहार पे क्लिक करेगा, और अगर हो सकता है कि कस्टमर 5 किलोमीटर के अबव रेंज में हो, तो वो लोग यहाँ पे आके डिलीवरी नहीं कर सकते, तो चूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। एंड ऑल्सो आप भी उनको प्रोवाइड नहीं करोगे, क्योंकि आपने भी खुद डिसाइड किया हो कि मैं सिर्फ इन्हीं डिलीवरी एरियाज में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो ये डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जहाँ जहाँ डिलीवरी कर रहे हो वो यहाँ पे आप शोकेस करो। उसके साथ साथ आप देखोगे कि प्राइसिंग भी हमने लिखा है, डिफरेंट डिलीवरी एरिया के डिफरेंट प्राइसिंग्स होंगे। हो सकता है आप 25 रुपीज़ लेते हो, किसी एरिया में आप 30 रुपीज़ लेते हो, 50 रुपीज़ लेते हो, इट्स ऑल अप टू यू, आप कितने चार्जेस लेते हो अकॉर्डिंग टू डिलीवरी एरिया। मैंने चूज़ किया यहाँ पे वसंत विहार, एंड देन एड्रेस यहाँ पे डालने का है, बिल्डिंग, लैंडमार्क, पिन कोड। ठीक है, आप पिन कोड यहाँ पे डालेंगे एंड आप आगे प्रोसीड करेंगे। नेम आप यहाँ पे डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्या पूछ रहा है आपसे, उसके बाद ये बोल रहा है सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शंस। सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन में सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। COD भी हो सकता है और UPI भी। अगर आप चाहते हैं कि COD अवेलेबल ना हो, तो ये इंटरनली आपको ऑफ करना होगा एडमिन पैनल के थ्रू, जो सबको ही प्रोवाइड होता है, और एडमिन से आप इसको ऑफ कर सकते हैं, तो यहाँ पे शोकेस नहीं होगा COD। रेस्ट ऑल जो भी पेमेंट मेथड है यहाँ पे शोकेस होगा। ये सारा आपके ऊपर है कि आप क्या चीज़ें शोकेस करना चाहते हो अपने वेबसाइट के अंदर, और क्या आप अंदर से ऑफ करना चाहते हो।
ठीक है। अगर सीओडी आपने वहाँ पे शोकेस किया तो सीओडी आपके कस्टमर को दिखाई पड़ेगा। और ये जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताया, नेम, नंबर, ईमेल आईडी, ये कस्टमर डेफिनेटली फिल करेगा। एंड इससे आपका एक बेनिफिट ये होता है कि कस्टमर का जो डेटा होता है, आपके पास एक एडमिन में कस्टमर डेटा कलेक्शन का ऑप्शन है। वहाँ पे आप एक क्लिक से एक्सेल का बटन होगा, एक्सेल पे आप जैसे क्लिक करेंगे सारा कस्टमर का डेटा आपके पास रिकॉर्ड हो जाता है, आपके पास एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएगा। इसलिए कस्टमर इन्फॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है। पेमेंट ऑप्शन, एंड उसके बाद आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ऑफर्स का ऑप्शन है। तो ये ऑफर्स कहाँ पे लगेगा? ये ऑफर्स लगेगा आपका अप्लाई ऑफर, कूपन कोड। अगर कस्टमर देख रहा है कि यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन है तो वो ऑफर्स पे जाएगा। जो भी ऑफर्स यहाँ पे मैंशनड है, FB1234 50%, RC जो जितने भी आप यहाँ देख रहे हो, RC01234, ये सारे एक कूपन कोड्स हैं जो आप खुद इंटरनली क्रिएट कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे एक तो कोड हमने क्रिएट किया हुआ है, नीचे आप देखोगे हेडिंग है और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है कि ये कूपन कोड कब आपको वैलिड होगा। ठीक है, किसके लिए आपका ये कूपन कोड वैलिड है। जैसे ऑर्डर अबव 500, ऑर्डर अबव 2000 ऑफ परचेजिंग, यू विल बी गेटिंग दिस कूपन कोड। और फर्स्ट बायर, इफ़ यू आर अ फर्स्ट बायर देन यू विल बी गेटिंग पर्टिकुलर कूपन कोड। करके दिखा देती हूँ। जैसे अगर मैंने पिकअप पे क्लिक किया एंड पिकअप डेट, पिकअप टाइम चूज़ किया, अपना नेम, नंबर, ईमेल आईडी चूज़ किया, एंड यहाँ पे सीओडी का भी ऑप्शन है तो मैंने सीओडी का ऑप्शन चूज़ किया। एंड ऑफर्स में यहाँ पे 50% का ऑफर मैंने चूज़ किया था। एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये वाला ऑफर कॉपी कोड किया एंड ये यहाँ पे लिख के आ गया, अप्लाई करके देखा, इसमें आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोड। क्यों नहीं हूँ एलिजिबल मैं? क्योंकि इसमें लिख कर क्या है, जब तक आप रेफर नहीं करोगे। तो अगर मैं ये वाला चूज़ करती हूँ तो ये वाला भी एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ऑर्डर अबव 1000 एंड गेट 50% डिस्काउंट। तो उसके लिए मुझे 1000 तक का ऑर्डर चूज़ करना होगा। दैट मीन्स मैं ऐड टू कार्ट में जाती हूँ एंड इस बिल को मैं 1000 तक लेके जाती हूँ। ये हो गया 1000। देन चेकआउट करेंगे, कंटिन्यू एज गेस्ट करेंगे, पिकअप पे चूज़ करेंगे, पिकअप डेट डालेंगे, पिकअप टाइम डालेंगे, कस्टमर इन्फो डालेंगे एंड सीओडी डाल करके यहाँ पे अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन है, ऑफर्स पे जाएंगे एंड कॉपी कोड करेंगे, अप्लाई करेंगे। एंड ये आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ पे 1000 हमारा सब टोटल हुआ था 1000 से अबव 1100 रुपीज़, जिसमें फ़ौरन डिस्काउंट मुझे मिल गया 50% का। तो 550 रुपीज़ मेरा टोटल अमाउंट बनता है। और अगर मुझे प्रोडक्ट में नोट डालना है, जैसे पिज़्ज़ा के साथ मुझे या फिर पिज़्ज़ा का ही मैं डाल देती हूँ, आई नीड नो, मैं यहाँ पे डालती हूँ आई नीड गुड अमाउंट ऑफ cheese on pizza with good toppings। ओके, एंड ये डाल करके मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, प्रोसीड टू पे। आप देखोगे लिख करके आ रहा है यहाँ पे योर ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। अब यहाँ पे या तो मैं चाहूँ तो सेंड ऑर्डर टू व्हाट्सएप कर सकती हूँ, व्हाट्सएप पे मेरा ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा, चला जाएगा। जिसमें आप ये देख सकते हो मैंने 3 पीसेस पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया था, एक बर्गर है एंड मेरा सब टोटल इतना हुआ था। डिलीवरी चार्जेस 0 हैं क्योंकि मैं पिकअप कर रही हूँ, इसलिए डिलीवरी चार्जेस 0 हैं। अगर यही मैं चूज़ करती होम डिलीवरी तो डिलीवरी चार्जेस लिख करके आता। टोटल 550 है। कमेंट मैंने जो डाला है, आई नीड गुड अमाउंट ऑफ चीज़ ऑन पिज़्ज़ा विद गुड टॉपिंग। ठीक है, ये आपके शेफ़ को या जो भी आपके यहाँ रेस्टोरेंट में काम कर रहा है उनको ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे स्पेशली ये चीज़ ज़्यादा चाहिए ऑन माई पिज़्ज़ा। कस्टमर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर का नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। डिटेल्स में अब डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अगेन पिकअप का ऑप्शन चूज़ किया था। पिकअप में मैं खुद जा करके लूँगी तो आई डोंट नीड टू गिव माई एड्रेस डिटेल। नेक्स्ट, डेट ये है, टाइम ये है, पेमेंट टाइप क्या है, सीओडी मैंने किया था। ट्रैक ऑर्डर, यहीं से आप ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो। एंड ये आपका नीचे वाला जो लिंक है वो रेस्टोरेंट का लिंक है। तो अगर मैं ट्रैक करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी एंड ये बना बनाया ऑर्डर आईडी यहाँ पे लिख के आ जाएगा मेरा। मैं ट्रैक हियर पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे लिख के आएगा पेंडिंग है। अभी पिकअप पे था, पेमेंट टाइप सीओडी है एंड स्टेटस भी पेंडिंग है। तो ये सारा डिटेल्स वगैरह यहीं से ही कस्टमर देख सकते हैं। थैंक यू।